Yes. So what the DPDP rules 2025, basically they are in news right now because the law has the implementation of the law has very recently started. The rules had not been notified earlier. The act came in 2023. Act means a law, and the rules means they are they are generally there to assist the implementation of the act. So very quickly, I'll just tell some of the keywords that are there in this act, which are important for everyone to know, and what exactly does that mean. What do these keywords mean? The provisions of the law cover these keywords like data principal, data fiduciary, significant data fiduciary, consent managers. Again, it's like a startup idea you can maybe pursue someday or right now. Legitimate use, the idea of legitimate use of data without consent, purpose and storage limitations, and of course the grievance redressal authority, that is the Data Protection Board of India. So what exactly here is meant by the data principle? So if you are signing on to any website, for example Facebook, Instagram, etc., you are the data principal, basically the users, and users are the at the most threat of becoming victims of what? Data breaches. सो बेसिकली द पर्सन जो भी तुम साइन इन कर रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, यू आर द यूज़र, यू आर द डेटा प्रिंसिपल. डेटा प्रिंसिपल माने यू ओन योर डेटा, आइडियली यू ओन एंटायरिटी ऑफ योर डेटा. सो वहाँ पे जितना भी डेटा है तुम किसी भी वेबसाइट पे डालते हो, इफ़ एनी ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दैट डेटा इन एन अनऑथराइज्ड मैनर, तो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट कंपनी थ्रू दिस DPBI, दैट इज द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया. सो yes. उसके अलावा what is meant by data fiduciary? Data fiduciary basically means the companies or the organizations that manage your data. And significant data fiduciary obviously means that a company which is very very big and manages the data of a lot of people. For example, I think Instagram, मेटा का जो है, इट हैज़ नहीं सॉरी फेसबुक के एक टाइम पे 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स थे. आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर राइट नाउ. 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स, दैट इज क्रेजी. सो दैट इज अ डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी. उसके अलावा कंसेंट मैनेजर्स, दीज ये इंट्रोड्यूस किया है आइडिया कंसेंट मैनेजर्स का, मतलब आइडिया नहीं, प्रोविजन. कंसेंट मैनेजर्स बेसिकली ये होंगे मिडल मैन टाइप होंगे. they will be responsible for managing your data on your behalf and your consent on your behalf. So basically एक company होगी कोई, Facebook will employ that company's services and that company will have the data of a lot of users under its fold. एंड वो जो कंसेंट मैनेजर कंपनी है जो जो जिसकी सर्विसेज ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसरीज हायर करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्राइवेसी, द डेटा, उनके कंसेंट ऑफ द यूजर्स डेटा दैट दे हैव. तो ये पॉसिबल पोटेंशियल स्टार्टअप आइडिया है, यू कैन थिंक ऑफ दिस, बिकॉज ये डेफिनेटली बढ़ने वाला है. बिकॉज एवरी सिंगल कंपनी दैट यूजेज एनी फॉर्म ऑफ डेटा विच इज, आई वुड से, कौन सी कंपनी इस टाइम जो डेटा नहीं यूज़ करिए, डेटा इज द न्यू ऑयल, तो एवरी वन वॉन्ट्स इन ऑन डेटा. सो every single company will be employing these consent managers. So yeah, a startup idea perhaps. Other than that, there is a term called legitimate use. Legitimate use basically means that in certain cases, exigencies like medical emergencies हो गई या कुछ employment के cases में, the data of the data principal, that is you users, can be utilized by these companies, एंड वो एक डीम्ड कंसेंट माना जाएगा इन द सेंस कि वो कंसेंट नहीं भी एक्सप्लिसिटली दिया तो लेजिटिमेट यूज़ है. लेजिटिमेट यूज़ मतलब कुछ भी खराब यूज़ नहीं है, लेजिटिमेट यूज़ है तो वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा देर आर पर्पस एंड स्टोरेज लिमिटेशंस. दिस इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द यूरोपियन लॉ. सो देर इज़ अ यूरोपियन यूनियन का लॉ विच इज़ कॉल्ड द GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. फुल फॉर्म छोड़ो, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन याद ही कर लेना, इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. EU GDPR is considered the it's like a model case of a data protection law, So most of the world, who have countries that have brought laws on data protection, they were influenced by the EU GDPR. So purpose and storage limitations is one feature that has been influenced from this. What does it mean? That if a company is taking your data for a particular reason, they cannot use your data for any other reason. For example, I'll tell you what. तुम लोग कभी भी कैफ़ेज़ में जाते हो, छोटे छोटे, हर कोई अब तुम्हारा फ़ोन नंबर मांगता है. वो क्यों मांग रहे हैं तुम्हारा फ़ोन नंबर? येस, बिकॉज दे वांट टू स्पैम यू ऑन व्हाट्सएप एंड वो सब ऑफर्स के लिए. मेनी ऑफ दीज कंपनीज ऑल्सो डू अ very shady thing. They sell this data.
फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट आई नो अ पर्सन, उन्होंने काम स्टार्ट किया था ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू पीपल, तो वो कॉल कर करके लोन्स प्रोवाइड करते थे. तो वेयर डिड दे गेट दीज नंबर्स फ्रॉम दीज कंपनीज दैट सेल द डेटा. तो ये जो सेलिंग ऑफ डेटा है कि हाँ हम तुम्हें तुम्हारा फोन नंबर ले रहे हैं बिकॉज वी वांट टू सेंड यू मैसेजेस, बट यस वी विल आल्सो सेल योर डेटा टू अदर कंपनीज. अब वो दे ऑब्वियसली सेल फॉर अ प्राइस. तो दैट पर्पस लिमिट, ये पर्पस लिमिटेशन में ये चीज़ जो है खत्म हो जाएगी कि अगर कोई कंपनी किसी पर्पस के लिए डेटा ले रही है तो उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है. स्टोरेज लिमिटेशन क्या है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में ही यूज़ होगा, एंड जिस कंपनी ने बोला है कि वो यहाँ पे स्टोर कर रही है डेटा, वो वहीं पे स्टोर करेगी, वो और कहीं स्टोर नहीं कर सकती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर data sovereignty. Sovereignty basically means that Indians should be owning their own data. No other countries data centers should be owning Indians data. And इसका एक फ़ायदा ये होता है कि since a lot of companies will be storing their data inside the country, it will give a boost to data centers also. Data centers is a proper वो terabytes and terabytes of data store करने के लिए they are proper data centers, जो एक business idea है of course, but it requires a lot of capital investment right from the beginning, but yes that's good. So it will promote local businesses also. Other than that, the Data Protection Board of India, it's like a government body uh, which is an online tribunal. ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स आर लाइक कोर्ट्स बट नॉट एग्जैक्टली. ट्रिब्यूनल्स आर, कोर्ट्स पे जजेस बैठते हैं, ट्रिब्यूनल्स पे जजेस नहीं बैठते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजुडिकेटिंग. मतलब उनका काम सिमिलर टू जज होता है कि वो ये लॉ पढ़ेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, ये बताएंगे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, पेनल्टी जो कंप्लेंट है किसी यूज़र की, वो कितनी वैलिड है, फिर उसके बाद पेनल्टीज कितना लगाना है जो कंपनी है उस पर है. तो ये ऑनलाइन ट्रिब्यूनल होगा. इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी बट येस इट्स अ वेरी गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अब ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रोज of the new DPDP Act, and that is that Indian IT and SaaS companies which are often criticized कि उनके data protection mechanisms जो है वो उतने strong नहीं है, because of course like since we have a lot of back offices of MNCs from across the globe, Indian companies in India are also managing a lot of data of users who are stationed abroad. मतलब जो बाहर रह रहे हैं उन users का भी Indian companies have their data. तो ऐसे में यही होगा कि जो इंडियन आईटी एंड सास कंपनीज है उनकी ट्रस्ट, प्रीमियम और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में कि येस नाउ वी हैव अ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन लॉ, नाउ वी हैव अ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन लॉ दैट दीज कंपनीज आर फॉलोइंग. हेंस उनका जो ग्लोबल मार्केट में वो वैल्यू बढ़ जाएगा. तो दैट्स अ गुड थिंग. एंड येस ऑफ कोर्स इट अलाइंस आर डेटा प्रोटेक्शन लॉज विद द EU GDPR as I was mentioning. Along with that, data hoarding, as I was mentioning that जो ये मैं बता रहा था कि a lot of companies just want to hoard data, वो आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, तो वो डेटा होर्डिंग करके सेल करने के लिए ही करते हैं लोग. तो दैट विल स्टॉप टू अ लार्ज एक्सटेंट. डेटा होर्डिंग विल नॉट बी देयर. सो ऑफकोर्स अब इसका एक नेगेटिव ये बोल सकते हो कि जो छोटे कंपनीज, छोटे बिजनेसेस हैं हु डोंट हैव द रिसोर्सेज टू गैदर डेटा ऑन देयर ओन, दे विल नॉट बी एबल टू बाय द डेटा ऑल्सो. सो ठीक है, इट्स अ रीजनेबल नेगेटिव, बट येस यहाँ पे जो प्राइवेसी ऑफ द डेटा प्रिंसिपल है, दैट इज यूजर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दीज स्मॉलर बिजनेसेस. आफ्टर दैट इफ यू लुक एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एज आई वाज मेंशनिंग, ये एक स्टार्टअप आइडिया हो सकता है. कंसेंट मैनेजर्स की कंपनीज, दे आर गोइंग टू कम अप अ लॉट. सो या फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हो सकता है सिंस द लॉ हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड जस्ट 2 months ago. Moving on, there are definitely some cons as well. Compliance cost for MSMEs, जो MSMEs as I was mentioning 6.5 crore MSMEs हैं इंडिया में which are employing a lot of people, they are producing a lot of things, services, products. उनके लिए difficult हो सकता है to comply with these laws because every single law that is it adds a compliance burden in terms of number of people that they'll have to hire. They might have to hire few technologically advanced people जो ये उनको बता सकें कि इस लॉ को ऐसे implement करना है, ये issues हो सकते हैं वगैरह वगैरह. उसके अलावा these MSMEs also have issues कि जैसे I was mentioning, they sometimes depend on data that they buy from other resources, तो वो अब नहीं कर सकते हैं वो of course. तो ये कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा. उसके अलावा RTI का डाइल्यूशन, दिस इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल ऑल्सो बिकॉज इस लॉ में ना स्पेसिफिकली ये लिख दिया है कि जो मेनी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स आर देयर, RTI एक्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. सो RTI एक्ट के अंडर क्या था कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, इवन लाइक समटाइम्स इवन PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनमें एनी सिंगल पर्सन, एनी नॉर्मल पर्सन लाइक अस, मच लाइक आवरसेल्व्स, दे कैन गो अहेड एंड फाइल कि हाँ हमें इस पर्सन का ये इशू के बारे में जानना है. फॉर एग्जांपल किसी ने कोई टेंडर दिया
फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को टेंडर बहुत देने होते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन का टेंडर वगैरह वगैरह, किसी ने कोई टेंडर दिया, किसी को ऐसा लगता है कि दिस टेंडर वाज नॉट गिवन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, किसी से पैसे लेके उस कंपनी को टेंडर मिला है, यू कैन फाइल एन आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वो एग्जैक्टली सारी डिटेल्स कलेक्ट करके तुम्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे सच सच हुआ था। एंड ऑफकोर्स ऐसे में कई बार जो ऑफिशियल्स हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती थी, तो दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाज अलाउड टू बी गिवन बिकॉज दे आर पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिशियल्स की जो कभी थोड़ी पर्सनल, नॉट एवरीथिंग, मतलब कि उनके सैलरी क्या है और वो सब, सैलरी तो चलो पता होती है, बट उनके जैसे एसेट्स वगैरह क्या हैं उतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं कई बार, बट सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाज अलाउड अंडर द आरटीआई एक्ट, वो दी जा सकती थी टू इंश्योर प्रॉपर आरटीआई एप्लीकेशन का फुलफिलमेंट हुआ है। This has been exempted now under this act because the government is saying that these public officials need to function in a ट्रांसपेरेंट मैनर, येस, बट उनको वो भी विदाउट फियर के भी करना पड़ेगा कि उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आ सकती है अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उन्होंने कुछ वैसा किया कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कोई टेंडर दिया है, वो ट्रांसपेरेंट वे में दिया है, येस, बट उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन आया, उनको डाइवर्ज करना पड़ेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो चाहते हैं कि नहीं डाइवर्ज करना है बिकॉज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वो पब्लिक ऑफिशियल्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड, उनको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाइवर्ज करने की जरूरत है। तो ऑफकोर्स जो एक्टिविस्ट्स हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इट विल रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी, बट जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि पब्लिक ऑफिशियल्स की पर्सनल डिग्निटी मेंटेन करने के लिए दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एंड दिस इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म जो बहुत सारे एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि इट हैज सेट लाइक अ पैरेलल रेजीम बन गया है डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स का, कि जो प्राइवेट सेक्टर है दैट हैज़ टू adhere to a lot of data protection standards, उनको प्रॉपर कंसेंट मैनेजर्स को एम्प्लॉय करना है, उनको प्रॉपर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को एम्प्लॉय करना है, उनको इंश्योर करना है कि जो डेटा है यूजर्स का वो कहीं भी मिसयूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे बड़े बड़े एग्जाम्पशंस हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ को मेंशन करके वो दे कैन स्ट्रेट अवे से कि वी डोंट वांट टू डाइवर्ज, वी डोंट वांट टू, we need exemptions from these standards. For example, सिंपल चीज़ लाइक अगर कोई डेटा है, क्रिटिकल पर्सनल डेटा है, उनको प्राइवेट सेक्टर को तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास है, पर्पस एंड स्टोरेज लिमिटेशन फॉलो हो रहा है, जो लोग हैं उनसे प्रॉपर कंसेंट लिया है कि वो डेटा कहाँ यूज़ होगा। लेकिन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास लेट्स से कुछ डेटा है, उनके आधार डिटेल्स, लोगों के आधार डिटेल्स का, एंड पता चला है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक में कुछ लोग हैं जिनके पर्सनल डिटेल्स उनको निकालनी पड़ेंगी, तो वो क्या करेंगे, आधार डेटाबेस में जाके ये बोल देंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से हमें इस पर्सन का पर्सनल डिटेल्स चाहिए। अब वही है, दिस इज़ अ गुड वे, टेररिज्म की जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। हाउएवर व्हाट्स टू से कि गवर्नमेंट अपने मिसयूज इस चीज़ को मिसयूज़ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट, 2019 में आई थिंक पुडुचेरी में ऐसा हुआ था दैट जो गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे भी एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर एंड गवर्नमेंट बैठती है। गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी के पास जो आधार डेटा था, देयर वॉज अ डेटा ब्रीच एंड दिस आधार डेटा वॉज फाउंड विद सम बीजेपी ऑफिशियल्स। सो ऐसे में क्या हुआ कि गवर्नमेंट तो बोल सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें आधार डेटा चाहिए था कुछ लोगों का, बट दिस वाज सरप्टिशियसली लाइक चुपके से बीजेपी के कुछ ऑफिसर्स को दिया था। सो अब वो ये कि उनके पास ऑब्वियसली इलेक्शंस आने वाले थे तो उनके पास एक अनड्यू बेनिफिट हो जाता, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। तो अकाउंटेबिलिटी अभी भी वो ये कि मिसयूज के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑफकोर्स एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, नो वन इज सेइंग कि दिस विल बी मिसयूज्ड, बट येस इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट क्रिटिक्स आर हाईलाइटिंग कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि एक चीज़ करी जा सकती है। मूविंग ऑन, इफ यू हैव टू लुक एट द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, ऑफकोर्स जो ये रेगुलेशन है इसमें स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, सो दैट इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि इट डज नॉट लीड टू एनी अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट स्पेशली फॉर स्मॉलर कंपनीज। तो ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि एवरीवन इज टेकिंग टुगेदर, एंड ये चीज़ हो भी रहा है बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन गिवन 18-month डेडलाइन टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द लॉज of this law, so that's a good thing, मतलब 18 months I would say is a sufficiently large deadline. Going ahead, जो RTI safeguards हैं public officials के, they need to be cleared more, क्योंकि
हाइट वो यही सिंपल चीज़ है यार, पर्सनल एस्पेक्ट जो है किसी पब्लिक ऑफिशियल का, वो उनका पर्सनल एस्पेक्ट है, उनकी पर्सनल डिग्निटी से रिलेटेड है। बट मेनी ऑफ द टाइम्स पर्सनल एसेट्स के ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स को देखना पड़ता है कि ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि दे आर गेटिंग द इनकम फ्रॉम सम सेकेंड हैंड मीन्स, अंडर टेबल मनी तो नहीं आ रहा, बिकॉज वो अंडर टेबल मनी से कई बार दे एंड अप बाइंग एसेट्स, तो उनके एसेट्स का नॉलेज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को, लोगों को चाहिए हो सकता है कि हाँ वी नीड टू सी कि ये जो पर्सन है पब्लिक ऑफिशियल है, इनके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स तो नहीं है कंपेयर टू दैट इनकम। उसके अलावा ऑफकोर्स जो कंसेंट मैनेजर्स का मैं बता रहा था, स्टार्टअप आइडिया प्राइवेट कंपनीज का, वो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग पब्लिक कंसेंट मैनेजर्स, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक व्हाट हैज बीन डन इन द लाइन्स ऑफ यूपीआई एंड भीम। यूपीआई इज लाइक अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एवरीवन हैज easy and fair access to it. So if and consent managers will be companies that will be holding a lot of data of people, because वो ही मेन जो companies हैं, something like the significant data fiduciaries or data fiduciaries, they'll be hiring the services of consent managers. Consent managers will have a lot of personal data of a lot of people. तो ऐसे में it is better, don't you think that it's better that the government also promotes public consent managers, something like a data transparency authority, something like a data transparency organization or a data transparency company. It could be a PSU also. So I think that public consent managers can be a good way forward, so that privacy is not monopolized by giants, because consent managers is also a possibility कि consent managers going ahead become very big, like in terms of their size and वो सब तो वो ही giants बन जाएंगे, तो कैसे होगा फिर। Okay, I think that's it with the DPDP Act. Today's last topic, 2 घंटे का लेक्चर होने वाला है, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट, डैम। एनीवे, generative AI and deepfakes. So I'm hoping everyone knows what generative artificial intelligence means, how it is different from normal artificial intelligence, what deepfakes mean. So मैं डिटेल्स में उन फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा, आई एम गोइंग टू कवर द पॉलिसी साइड ऑफ थिंग्स थोड़ा सा, बिकॉज वही लाइक इट इज़ जनरली अ वेरी हॉट टॉपिक। एंड ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक है, विच आर ओन्ड बाय मर्क्यूरियल पीपल लाइक इलॉन मस्क, मतलब क्या ही करते रहते हैं यार वो। एनीवे, सो जो जनरेटिव एआई एंड डीफेक्स का रेगुलेशन है, उसमें इंडिया, देर आर सम, वही एक स्पेक्ट्रम है फ्रॉम स्ट्रिक्ट टू लिबरल। यहाँ पे आता है ईयू, इससे भी आई थिंक एक और स्ट्रिक्टर होगा, आई वुड से प्रॉब्ली चाइना, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बट ठीक है, मतलब एक डेमोक्रेसीज को देखेंगे तो स्ट्रिक्ट में ईयू आता है एंड लिबरल में यूएस आता है। तो यूएस ने क्या किया है कि उन्होंने पूरा खुली छूट ही दे दी है स्टार्टअप्स को कि तुम करो एआई पे इनोवेट, कोई तुम्हें नो वन विल स्टॉप। ईयू ने क्या किया है, ईयू हैज अडॉप्टेड अ हार्ड लॉ अप्रोच बिकॉज द ईयू law has been, of course it has been praised that it will reduce the problematic misuse of deepfakes वगैरह वगैरह, but it will all obviously end up stifling innovation as well, because I was mentioning every single law that comes has a compliance burden, एंड छोटे स्टार्टअप्स, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो इनोवेट भी करें, वो फिर सारे लॉज भी एक एक चीज़ फॉलो करें, क्योंकि दे हैव टू हायर लीगल टीम्स वगैरह वगैरह, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। तो ये कंप्लायंस बर्डन की वजह से ईयू का लॉ कैन बी सेड दैट इट माइट स्टाइफल इनोवेशन गोइंग अहेड ऑल्सो। लाजे फेयर का बेसिकली मतलब वही होता है, फ्री मार्केट लिबरल अप्रोच, दैट इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द यूएस कि तुम इनोवेट करो, बट ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज रिस्क सेफ्टी। हाउ डू यू थिंक ट्विटर जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, लिटरली इलॉन मस्क ने बोल दिया कि एनीवन कैन बी शोन इन अ बिकिनी, सिंपल एक ग्रॉक के प्रॉम्प्ट को लेके, एंड इतनी बड़ी, इतना अच्छा खासा पूरा देश है यूएस, वहाँ के लॉ के थ्रू इट पास्ड एंड इट्स स्टिल देयर। इंडिया में थोड़ा उस पर स्टॉप आए, ईयू में स्टॉप आया, बट यूएस में आई थिंक स्टिल इट्स गोइंग ऑन फुल्ली। तो ऑब्वियसली इट रिस्क सेफ्टी, हर चीज़ खुली नहीं छोड़ सकते हो तुम। तो इंडिया इज अडॉप्टिंग अ हाइब्रिड मॉडल विच आई थिंक इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल plus innovative. Practical because of course like you cannot completely stifle everything, something that the EU law is attempting, but it will help in innovation as well, because हम बहुत ज़्यादा strict नहीं रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा loose भी नहीं रख रहे हैं, तो it's like a middle path। हाँ, तो उसमें क्या किया है कि जो existing IT rules हैं, so we have an IT Act 2000, it's not Income Tax Act, that is 1961. This IT Act is Information Technology Act 2000. So of course it's a little old now, 26 years old. So what this act has, it has provisions for all these things कि जो
डिजिटल स्पेस है इंडिया का, वो कैसे मैनेज करना है, उसके रूल्स क्या हैं, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कितना है लोगों के पास, एंड हेट स्पीच क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्विटर पर हेट स्पीच इज़ वेरी कॉमन, ऑल ऑफ दैट इज़ रेगुलेटेड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके रूल्स भी हैं साथ में। तो इसके जो आईटी रूल्स हैं, दीज वर अमेंडेड रिसेंटली इन 2025। देयर वाज एन अमेंडमेंट इन 2025 जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजंस लेके आ गए हैं टू इंश्योर दैट जो ये एआई का मिसयूज है ये रिड्यूस हो। वील कम टू द स्टेप्स अभी। Along with that, this IT Act is going to be replaced very soon with a new Digital India Act. Digital India Act is still under consultation, it has not come. So it will be a bill first, Digital India Bill, probably in 2026. Then it will become an act once it passes through the parliament. And this will completely revamp the digital and cyber security related legislations of India, which are currently obsolete under IT Act 2000. So लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के लिए होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म में वी हैव ऑलरेडी डन कि आईटी रूल्स को ऑलरेडी अमेंड कर दिया कि जब तक डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा वी हैव अ वेरी गुड रेगुलेटरी बेस फॉर स्टॉपिंग मिस यूज ऑफ एआई। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन। तो जो अमेंडमेंट हुआ है 2025 में, इसमें एक 10% रूल लेके आया है कि जितना भी एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको लेबल करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू, हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएट तभी, बट हमारे जो पेरेंट्स का जनरेशन है या फिर उनसे भी जो ओल्डर लोग हैं, विच ऑल ऑफ देम एवरीवन इज ऑन द इंटरनेट नाउ, एंड ऑफ कोर्स किड्स जो हैं दे माइट नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज एआई जनरेटेड एंड व्हाट इज नॉट एआई जनरेटेड। तो यहाँ पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट, केसेस कैन बी फाइल्ड इफ द कंपनीज डोंट डू दैट। एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करना पड़ेगा, एंड जो वाटर मार्क है वो 10% ऑफ द विजुअल एरिया कवर करना चाहिए एटलीस्ट। मतलब इट्स समथिंग लाइक कि अगर मेरा ये एआई जनरेटेड है, मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे, तो ये तो कोई भी क्रॉप कर दे भाई, ऐसे इतना ले लो क्रॉप ही कर दे कोई, तो इट्स स्टूपिड। तो इसलिए 10% ऑफ द विजुअल एरिया जो है, विजुअल सरफेस एरिया, या फिर एज यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो, उसमें ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा दैट दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकंड, देयर इज अ सेफ हार्बर लिंकेज इफ, सो व्हाट हैपेंस, सी आई टेल यू व्हाट, छोटा सा पेज चाहिए मेरे को यहाँ पे ना, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ऑन हाउ दीज social media companies are regulated. So what happens, social media intermediaries बोलते हैं इनको, एंड ये सभी हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर मतलब एक्स है ना, दीज आर कॉल्ड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब गवर्नमेंट एंड ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज, इनके स्टैंड है रिगार्डिंग कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या बोलते हैं, वी आर ओनली होस्टिंग द कंटेंट, इट्स नॉट रिटन बाय अस, इट्स नॉट मेड बाय अस, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग। सो if anything is illegal, we should not be punished, the user who has put the content should be punished. Illegal content में we need immunity, ये बोलती है सोशल मीडिया कंपनीज। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यूजर को किसने ऑन बोर्ड किया है, तुमने किया है। यूजर का कंटेंट अलाउ कौन कर रहा है, 100 करोड़ लोगों को दिखाने का, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज बिग टेक जायंट्स हैव दीज मेनी यूजर्स, तुम कर रहे हो। तो हाउ कैन यू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एल्गोरिथम तुम डिसाइड कर रहे हो, क्या दिख रहा है तुम डिसाइड कर रहे हो, कौन कमेंट कर पा रहा है तुम डिसाइड कर रहे हो, किसको ऑन बोर्ड करना है तुम डिसाइड कर पा रहे हो, हाउ कैन यू एस्केप इम्यूनिटी भाई। तो ये डिफरेंट स्टैंड है रिगार्डिंग कंटेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका एक सॉर्ट ऑफ मिडिल ग्राउंड है। गवर्नमेंट ने बोल दिया वी विल गिव यू इम्यूनिटी as long as you follow our laws। जो भी हम बोलेंगे you have to follow that law to the last word in the time limit we say, you keep yourself in line, we will give you immunity and only the user will be punished। this is called safe harbor provision, एंड दिस इज एज आई वॉज मेंशनिंग दिस इज इन इनकम टैक्स बोल दिया मैंने भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर ये लिखा हुआ है प्रॉपर। सेफ हार्बर प्रोविजन, what the government says, if there is any let up
on your side if you do not follow a law, if you do not follow the timeline of the laws, anything, if you don't follow any rule, you will lose the safe harbor provision immediately. As soon as you lose the safe harbor provision, people can start filing FIRs, proper first information reports, against these companies, because right now they have immunity, no FIR can be filed, but people can start filing FIRs against this. So you can imagine, in a country of 140 crore people like India, if any company loses safe harbor provision, it can be a headache for them, a big headache for them. Headache is like an understatement. So this safe harbor provision is has been linked to this rule also, कि platforms intermediaries explicitly lose their safe harbor immunity, protection from legal liability, if they fail to act on user complaints about deepfakes within 36 hours. Any deepfakes regarding any user is there, you can complain to the grievance redressal body of these platforms. जो भी है, इन सबका कोई ना कोई ईमेल होता है, उस पर मेल करो. Within 36 hours of the email, if your complaint is not resolved, you can file a case against them. Okay, so this is, I think it's, and I explained it properly. Okay, अब जो ये मैं बात कर रहा था, डिजिटल इंडिया एक्ट विच इज अपकमिंग, इट इज स्टिल इन द ड्राफ्ट स्टेज अभी, मतलब इट इज, द प्रोविजंस आर बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर द आउटडेटेड IT एक्ट. This will go ahead and promote propose a digital India authority to regulate, and this will be a proper regulatory authority which will be a government body, and of course there is a chance that it might have some representation from the industry leaders also, but it will be mainly a government body, but it will be distinct from a ministry. How will this happen? If any content which can be a deep fake or something like that is put, let's say even by mistake, by a government ministry or anything, and this body is also a government body, then there can be a conflict of interest, because government body will be ruling on government ministry's problem or issue. Hence it will be independent, autonomous body. When it comes, it has not come, when it comes. So this can be cited as a way forward also, that going ahead, the Digital India Act must have a Digital India Authority which has autonomy and powers from both the government and for regulating the private sector both. I think that is it. Moving ahead, there is definitely some issues here, because why does regulating of deepfakes and AI become important? Because there, as I mentioned, every single law has compliance issues, compliance burden for companies. So why is it still important that we go ahead and regulate this? Of course, to protect the dignity of people, especially the vulnerable sections like kids, women, and other sections of the society which are generally targeted more on social media. But yes, it also will lead to a trust economy. बिकॉज एक वैसी चीज़ सोचो है, कई बार जैसे व्हेन आई गो थ्रू रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स, मेनी ऑफ द थिंग्स दे सीम रियल, बट कमेंट्स में होता है AI जनरेटेड, AI जनरेटेड, AI जनरेटेड. इट इज़ बेसिकली पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन वॉट इज रियल एंड वॉट इज नॉट रियल. एंड वही है, आई स्टिल कांट से इफ दैट इज पक्का से AI जनरेटेड और नॉट. तो people have stopped believing anything they see online. Even the genuine content might be labeled as AI. So, and this is mainly because of the deepfakes. This can even lead to a collapse of the digital economy, because if people stop going online for things, matlab, people need to go. There are a lot of bad things about being online, but there are a lot of good things also. If people stop believing everything online, the digital economy can collapse. And India's digital economy is almost touching $1 trillion right now. So there are a lot of stakes. Regulation restores trust, of course. And then, of course, there is election integrity. India is a democracy, and free and fair elections, they form heart and soul of a democracy. So if free and fair elections are compromised because of issues like deepfakes, it can very well lead to improper candidates coming to power, and that can, of course, compromise the quality of Indian democracy. So yes, this becomes an issue because literally any person's 30-second clip can be used to train an AI voice coach types. तो वो AI voice से वो कुछ भी बुलवा सकते हैं. Within a 30-second clip is all that's required. So that is a problem, and it becomes a problem for national security. It becomes a problem not just for technology. So yes, trust economy, people's dignity, election integrity, all of these are very good and important issues that are essential, absolutely essential, so that people are able to trust the digital economy of the country. And if we have to see a way forward, I think ये एक बहुत अच्छा तरीका है to again find a hybrid balance. The startups and small companies, they can be given a regulatory sandbox. So what is a regulatory sandbox? Regulatory sandbox basically होता है कि they are given a time period, कि कुछ time like 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, you don't follow these standards,
or they are given a particular field, for example, in a specific field regarding data privacy, data standards for नॉर्मल जनरल वर्किंग अडल्ट्स, कि किड्स नहीं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, एल्डरली नहीं, बट जो जनरल वर्किंग अडल्ट्स हैं उनका डेटा कुछ 4 से 5 महीने के लिए तुम बिना ये रेगुलेशंस फॉलो कर ले यूज़ कर लो, बिकॉज यू नीड टू इनोवेट, तो तुम इनोवेट करो। तो वो बेसिकली एक रेगुलेटरी फोरबियरेंस बोलते हैं इसको, regulatory forbearance. Basically, the government comes ahead and says you don't have to follow these regulations temporarily, you can innovate. As soon as your final product is ready, you start following the laws to the letter and spirit. That's a very good balanced approach. Other than that, of course, we need sovereign artificial intelligence, because currently even the most popular LLM tools currently in the country सब बाहर के हैं, कोई भी इंडिया का नहीं है. Sarvam AI, I think, या Manus AI, one or two are there which are coming up, but they are not as popular. So we need a sovereign AI, because if we are depending on AI of countries in the West, we need to remember that their training data also has biases of the West. So if we, for example, ऐसा हुआ नहीं है बट ऐसा हो सकता है कि जैसे इंग्लिश स्कूल्स में, यूके के स्कूल्स में, their schools still don't teach the colonial history of the British Empire because it's bad. Of course उनके higher education institutions में है बट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं. अगर वैसा कुछ डेटा is being used to train their LLM models, for example, so we sitting in India, we get a very biased view on our own history. So that is an issue that comes with AI models from abroad. So we need sovereign AI. Uske liye we have launched the India AI mission, which has all aspects. It has infrastructure aspects like GPUs वगैरह खरीदना from Nvidia and all that stuff, and of course it also has training जो है वो करनी है. There is an AI mission का जो target है कि we need a Jan AI. Jan AI means public oriented AI, वो भी है, like Gen AI to Jan AI, it's like a good keyword you can mention maybe. तो इट्स लाइक अ पब्लिक ओरिएंटेड एआई, वो भी इसका गोल है. तो इट्स अ गुड मिशन दैट हैज बीन सेट अप. एंड ऑफ कोर्स वाटरमार्क स्टैंडर्ड्स इन द सेंस कि जो ये वाटरमार्क हैं उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हों, प्रॉपर मेट्रिक्स हों, सो दैट दे आर नॉट बी, दे कांट बी फेक्ड, बिकॉज वो आई एम अज्यूमिंग वाटरमार्क डालना किसी भी चीज़ पे बहुत मुश्किल नहीं होगा शायद. तो वो ये कि वी नीड प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर वाटरमार्क्स ऑल्सो, सो दैट द मिस यूज इज रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल. दैट इज इट विद माई लेक्चर गाइज एंड गर्ल्स जो भी हैं. अगेन मेरा ये QR कोड फ़ोटो खींच के रख सकते हो, इस पर मेरे सारे लिंक्स हमेशा रहेंगे अपडेटेड. एंड थैंक्स एवरी वन फॉर कमिंग. सुबह सुबह मैंने तुम लोगों के 2.25 घंटे खा लिए, बट आई एम होपिंग द लेक्चर वॉज फ्रूटफुल फॉर एवरी वन. एंड यार जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें मैं वो चीज़ करूँगा कि रोज़ ना आई जस्ट पुट द हेडलाइंस एटलीस्ट, तो यू विल एटलीस्ट नो कि चल क्या रहा है. एंड स्लोली, अभी नहीं बट वेरी क्विकली, आई एम गोइंग टू पुट अ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सेशन इन डिटेल on my YouTube channel and of course Telegram पे भी. and उसके अलावा I'll put a जो मैं वो बोल रहा था डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस I'll start putting. तो दिस विल बी, आई थिंक उतना शायद तुम लोग को यूज़ ना हो, बिकॉज इट विल बी इन टू मच ऑफ डिटेल, यू माइट नॉट रिक्वायर दोज मेनी डिटेल्स, बट ये कुछ चीज़ें हैं विच आई एम प्लानिंग टू डू गोइंग अहेड ऑन माई यूट्यूब एंड टेलीग्राम. सो उसके लिए ये QR कोड फोटो खींच के रख सकते हो. एंड मैं ग्रुप पे भी लिंक डाल दूंगा. आई थिंक दैट इज़ मच प्रीटी मच इट. I'll share the PDF in the WhatsApp group, what resources you refer for understanding a topic, because I could see that there is no single resource which puts all the details comprehensively in a single place as you explained. Secondly, how to consolidate the information from multiple resources and put it together to make sense. Any tips? यार मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा चीज़ जो काम करी है वो न्यूज़पेपर. I have been a thorough reader of The Hindu almost every day from June 1, 2019. तो और मेरा ना मतलब वो ये कि अगर तुम रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, इफ़ यू आर स्पेंडिंग इवन हाफ एन आवर अ डे विद अ न्यूज़पेपर, यू स्टार्ट कनेक्टिंग इशूज़ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल जो मैं गाजा कॉन्फ्लिक्ट एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बताया, मेरे को अभी भी याद है फरवरी 2022 के आसपास क्या न्यूज़ चल रही थी. मतलब ऑब्वियसली लाइक आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स व्हाट वाज हैपनिंग, बट आई रिमेंबर द रफ आइडिया. तो अगर मैं अभी लेट्स से मैंने 1 महीना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, इंटरव्यू के बाद, मेरा इंटरव्यू 9 दिसंबर को था, तो 1-1.5 महीना मैंने उसके बाद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, फिर अभी स्टार्ट किया था. तो अगर मैं कुछ चीज़ें मिस भी करा, आई जस्ट नीड टू रीड वन आर्टिकल एंड आई कैन रिकॉल एवरीथिंग पहले से क्या चल रहा है. तो कोशिश करो, ट्राई एंड स्पेंड 30 मिनट्स विद द न्यूज़पेपर एवरी डे. डोंट स्पेंड टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तुम लोग को इशूज़ के, बट हाँ यू नीड टू बी, यू कैन बी अवेयर. एंड अगर एग्जाम्पल चाहिए ना फ्रॉम योर प्राइवेट इंडस्ट्री, देयर इज दिस गाय JP मॉर्गन का वो कौन है CEO, जेमी डायमंड.
He told, I read 4 to 5 newspapers every single day. That's why he's been the CEO of one of the largest banks globally for the last 18 to 19 years. Damn. 4 to 5 newspapers every single day. तुम उस बंदे का दिमाग जान रहे हो क्या होगा? He is calculating things we don't even know right now. तो वो ये एंड तुम्हारे अगर तुम्हें इकोनॉमी की न्यूज़ पसंद है, इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है, द मिंट है, लाइव मिंट है शायद न्यूज़पेपर का नाम, वेबसाइट का नाम मिंट है। तो ये इकोनॉमी सेंट्रिक न्यूज़पेपर्स हैं। अगर थोड़ा इजी न्यूज़पेपर चाहिए, एच टी और टी ओ आई पढ़ लो। अगर छोटा होता है, एच टी स्पेसिफिकली आई थिंक काफ़ी छोटा होता है रोज़ के हिसाब से पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान टाइम्स। अगर थोड़ा डिटेल में जाना है तो द हिंदू पढ़ो। द हिंदू थोड़ा लंबा होता है, बट इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा डिटेल बट लेस देन द हिंदू, ये पढ़ लो। बट वो ये कि थोड़ा टच बना के रखो यार, लाइक it's about your life. Don't just aim at this exam or this interview. It's about your life. You need to train yourself that way that you're able to think like how these leaders think. And when you start thinking like how these leaders think, only then you can perhaps hope to become one day where they are right now. Okay, so एक और चीज़, न्यूज़पेपर ही हो गया। अब तुम्हारा सेकंड पॉइंट कि हाउ टू कंसोलिडेट दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच ईशा। सेकेंड चीज़ कि हाउ टू कंसोलिडेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। सी अब मैं क्या करता हूँ, अब वो ये कि अगेन आई एम टेलिंग, शायद तुम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं हो, मैंने कैसे किया है। आई यूज़ टू टेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो ये ना मैं इसकी एक वीडियो भी डाल दूंगा। आंकी फ्लैश कार्ड्स करके ना एक ऐप है। आंकी फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है कि एंड्रॉयड पे है ये, आई थिंक एप्पल का पेड है, एप्पल ऐप स्टोर पे पेड है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे फ्री है, एंड इसका डेस्कटॉप ऐप भी होता है, तो सब सिंक रहता है मस्त एकदम। तो व्हाट आई यूज टू डू, मैंने डेक्स बना लिए थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ऐसे करके, मतलब यू गेट द आइडिया। इनमें मैंने फिर कार्ड्स बना लिए थे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का कुछ इशू चल रहा है, जैसे बजट एंड ईएस हर साल आता है, उसके मैंने नोट्स बना लिए उसमें। एंड ज़्यादा नहीं, एक दिन के न्यूज़पेपर से तुम्हें ज़्यादा नोट नहीं बनाने, 1 से 2 कार्ड बनाओ रोज़ के, वरना वो ये कि वो बहुत बल्कि बन जाता है। बजट इन ईयर्स का एक डॉक्यूमेंट बना, एक कार्ड बना लिया, उसमें ऐसे नोट्स डाल लिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर आंकी फ्लैश कार्ड्स। आंकी फ्लैश कार्ड्स अगर तुम्हें चमके तो यूज़ करो, अगर नहीं चमके तो आई विल टेल यू व्हाट, थोड़ा आसान है शायद ये, गूगल डॉक्स। एक सेकेंड, just a second. या सो गूगल डॉक्स में क्या करता था मैं, सेम चीज़, इकोनॉमी का एक पेज बना लिया, साइंस एंड टेक का एक पेज बना लिया। इसमें जैसे कोई टॉपिक आया, बजट का टॉपिक आया, बैंकिंग का टॉपिक आया, तुम्हारी इंडस्ट्री, लेट्स से मार्केटिंग की इंडस्ट्री, मार्केटिंग का कुछ आया, ठीक है, उसके अलावा जो भी इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कुछ आया, 2 लाइन लिख लिए बस उस दिन के, 3 लाइन लिख लिए बस उस दिन के, मार्केटिंग के 2 लाइन लिख लिए। ऐसे में ना तुम्हारे पास एक वो अपना खुद का बनाया हुआ नोट बनने लगेगा, एंड दिस विल बी लाइक योर। फिर वो ये कि कुछ भी तुम्हें पता लगता है ना न्यू, तुम जाके अब वहाँ पे लिख लो। गूगल डॉक नहीं करना, नोशन कर लो यार, नोशन में थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है। वट एवर इट इज, मेक समथिंग ऑफ योर ओन। एंड मैं ये सबको बोल रहा हूँ, whoever is planning to go into the industry, every one of you is planning to go into the industry, this thing जो ये तुम्हारे सेल्फ नोट्स होंगे ना, this will be your differentiating factor. How do you differentiate yourself from the 100 other candidates? यू स्टार्ट लाइक 30 मिनट्स रोज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हारा रेलेवेंट न्यूज़ है, बहुत आता है, प्रोडक्ट का है, मार्केटिंग का है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ पता लगते रहेगा तुम्हें यार। बट कुछ नहीं तो जनरल इकोनॉमी का आइडिया रखो, क्या चल रहा है देश में, उनका छोटा छोटा नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं, 3 लाइन रोज, 4 लाइन रोज बस, एंड दैट विल बी योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। थोड़ा सा वो, yes, consistency is absolutely important. Rose spending 30 minutes every day on the newspaper is better than spending 5 hours on the weekend. I'm telling you that, because वो consistency से ना you will be able to connect a lot of things. और वो कनेक्शन जो दिमाग में जब बनने स्टार्ट होते हैं ना, यू कैन एक्चुअली फील न्यू न्यूरल कनेक्शंस फॉर्मिंग इन योर ब्रेन। वो फाइबर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें तुम हफ्ते पुरानी पहली चीज़ पढ़ी हुई जो तुम अब कनेक्ट करोगे किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को इकोनॉमी के टॉपिक से, तब दैट इज़ व्हेन यू लर्न यार, दैट इज़ व्हेन यू लर्न, ठीक है। इंटर कनेक्शन, कलर चेंज हो गया पता नहीं क्यों। इंटर कनेक्शन इज द सीक्रेट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रिमेंबरिंग।
आई टेल एवरी वन दिस, एवरी वन, इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड वो तभी आएगा व्हेन यू कीप कंसिस्टेंट. ओके, और कुछ? थैंक यू सर, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, थैंक्स मैन. बिल्कुल, एंड वो या थोड़ा सा ना यूट्यूब टेलीग्राम पे मैं कुछ ना कुछ डालते रहा करूँगा, तो वो ये कि थोड़ा वो ऑब्वियसली सिविल सर्विस सेंट्रिक होगा, बट देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई थिंक विल बी यूजफुल फॉर यू एज वेल. मैं इंटरव्यू का एक वीडियो आई थिंक अभी डाल दूंगा, थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल यू आर स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू. अब वो जॉब इंटरव्यू है, सिविल सर्विस इंटरव्यू है, MBA इंटरव्यू है, कुछ भी है. एंड हाँ यार, मैंने तो कोशिश ये किया है कि हमेशा नॉलेज को ना अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाने का. Like good communication skills are obviously very important, but yes, you can make knowledge your differentiating factor also. Try and do that. और कुछ essay writing के लिए कुछ suggestions? अच्छा, ये पढ़ा नहीं था मैंने, सॉरी यार. essay writing के लिए हम लोग का एक बेस्ट पता तरीका क्या होता है, लाइक सिविल सर्विस में मैंने ये खुद किया है. वी ब्रूट फोर्स थ्रू एवरी डैम प्रॉब्लम वी नो. ब्रूट फोर्स क्या करना है? तुम्हें ऐसे लिखने को डर लग रहा है ना, तुम रोज़ एक ऐसे लिखो, तुम 3 महीने तक रोज़ एक ऐसे लिखो, फिर मेरे को बताओ तुम्हें 91st डे पे कितना डर लग रहा है ऐसे लिखने के लिए. हमने ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वी हैव अ 3 मंथ गैप, एग्जैक्टली 3 मंथ गैप, एंड मेंस में ऐसे का पेपर होता है. इट्स अ 250 मार्क पेपर. वी हैव टू राइट 2 essays in 3 hours, 1.5 hour each. वी स्टार्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन आइडियाज़. तो बिकॉज वी, अब वो ये रोज़ ऐसे लिखना थोड़ा बल्कि हो जाता था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स होते थे. ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे हम. क्या करते थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से यू टेक अ टॉपिक, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे हमारा ऐसे आता था. कोई जल्दी से बताओ. आई थिंक देयर फॉर आई एम, ये मेरे को अभी याद आ रहा है बस. ठीक है, ये ऐसा टॉपिक आता नहीं, इट्स टू पर्सनल, मतलब ये बहुत ही पर्सन सेंट्रिक आइडिया है, बट ये नहीं आता है. बट यार कुछ और लेते हैं, रुको, ये ले लो. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वंस एज ट्रेजेडी वंस एज फार्स. हिस्ट्री, ये आया हुआ है एक्चुअली यूपीएससी के पेपर में, वंस एज ट्रेजेडी. ये कार्ल मार्क्स का कोट है, वंस एज फार्स. ओके, सो अब ये टॉपिक है, ठीक है. तुम्हें पूरा ऐसे नहीं लिखना है, इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो फॉर्मेट फॉलो करना स्टार्ट ही कर दो टू गिव सम स्ट्रक्चर टू योर ऐसे. मुझे नहीं पता तुम्हारा ऐसे कितना लंबा होता है, कितना मार्क्स का आता है, बट ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रखो. इंट्रोडक्शन में यू इंट्रोड्यूस द आइडिया. इट्स क्वाइट इंटुइटिव, खुद से मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इंट्रोड्यूस द आइडिया. बॉडी में यू कवर द मल्टीपल डिमेंशंस ऑफ दैट आइडिया. जैसे मैं वो बताया था ना, पेस्टल 250-300 वर्ड्स, वेरी गुड, मतलब इट्स क्वाइट स्मॉल. देन हम लोग का जैसे 1000 से 1200 वर्ड होता था, तो इतना डिटेल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है. मैं पेस्टल बता रहा था ना, पेस्टल कर लो. पेस्टल मतलब यू ओपन द आइडिया फ्रॉम एवरी सिंगल डिमेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री. ठीक है, तो इसके, और यहाँ पे तुम ये डिमेंशंस खोलो, ये हर टॉपिक के खोलो. कुछ भी टॉपिक है ना तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लोबलाइजेशन पे अगर आया तो ग्लोबलाइजेशन की ये सारे एस्पेक्ट्स खोलो. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, प्लीज रिमेंबर दैट. ग्लोबलाइजेशन इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. यूएस के पॉलिटिकल आइडियाज कितने कंट्रीज में गए हैं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, यू नो. इट्स एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ऑफ कोर्स. इट्स अ सोशल आइडियोलॉजी. मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सिर्फ मूवमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन में. टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, nuclear power plants from USA are being used in India. Big tech from US is controlling the narrative in India. This is a technological aspect of globalization. Environmental aspect क्या है? Pollution बढ़ा है, जो कैपिटलिज्म है उसको बूस्ट मिला है, उसकी वजह से. बेस्ट एग्जांपल, अरावलीज में पत्थर तोड़े जा रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इलीगली. वो क्या है? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कह लो ग्लोबलाइजेशन का, बिकॉज फॉरेन कैपिटल इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री एंड दे आर डिसाइडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हियर. लीगल एस्पेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? इसमें तुम ऑर्गेनाइजेशंस ला सकते हो, आई थिंक वर्ल्ड बैंक, IMF ला सकते हो लीगल एस्पेक्ट में. वर्ल्ड बैंक, IMF के भी पॉजिटिव्स हैं दैट दे हैव बीन एबल टू इंश्योर cheap cost development aid to various countries, developing nations, but इनके conditionalities होते हैं. A lot of countries have faced economic crisis because of World Bank and IMF के जो terms and conditions होते थे. तो that's how you open an issue. पेस्टल बस ये याद रख लो, इट्स क्वाइट सिंपल. एंड जो मैं बोल रहा था, अगर तुम्हें और ऐड करने का मन है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल, एथिकल, सिक्योरिटी, डिजास्टर, ये सब एस्पेक्ट्स ऐड कर सकते हो. एंड अगर कॉम्प्रीहेंसिव तुम लोग को वो चाहिए निमोनिक, वो भी मैंने बनाया हुआ था, बता देता हूँ.
ये बट यार वो है मतलब यार ये ना लिखना मत तुम लोग, क्योंकि ये ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि तुम लोग का 250-300 वर्ड्स का ऐसे है, तो ये सब इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. दिस इज कल्चरल हिस्ट्री, सोसाइटी, जोग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल, एच नहीं होगा यहाँ पे, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, सिक्योरिटी, एथिकल. ठीक है, तो वो ये है, इसको छोड़ो, पेस्टल पे फोकस करो. दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर 250 to 300 वर्ड. यस एग्जैक्टली, जीएस टॉपिक्स. जिन लोगों ने सिविल सर्विस पढ़ा है, ये GS1 है, ये GS2 है, ये GS3 इसमें मिक्स है, और GS4. ठीक है, बट ठीक है छोड़ दो. पेस्टल मोर देन इनफ. दूसरा, बॉडी में ब्रिंग एग्जाम्पल्स. इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल. अगर तुम ये बोल रहे हो कि US बिग टेक इज कंट्रोलिंग द नैरेटिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे कई बार ऐसे इश्यूज हुए हैं कि दे ओनली प्रमोट सर्टन टाइप्स ऑफ कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ. 2019 में एक इंटरनल स्टडी थी फेसबुक की. दे रैंडमली, इंटरनल स्टडी थी तो इट वॉज लीक्ड ऑब्वियसली, उन्होंने खुद से आउट नहीं करी. इंटरनल स्टडी थी. दे मेड अ साउथ एशियन अकाउंट, साउथ एशियन 15-year-old बॉय का अकाउंट, एनोनिमसली ऑफ कोर्स. साउथ एशियन मतलब इंडियन ही मान लो. एंड रैंडम कंटेंट दे यूज टू जस्ट स्क्रोल. ठीक है, within 30 days automatically this person's account was being fed by content, softcore porn, communalism, ठीक है, हेट स्पीच, फिर बॉडी शेमिंग, रेसिज्म. एंड ये खुद की फेसबुक की इंटरनल स्टडी है. इसका तुम मतलब समझ रहे हो. दीज कंपनीज एल्गोरिथम्स प्रमोट सच कंटेंट बिकॉज दे नीड मोर एंगेजमेंट. 15-year-old बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर तुम दोगे while writing that Western big tech is controlling the narrative of Indian society, it makes it suddenly way more understandable, way more relatable. Of course, and analogies दे सकते हो, analogies, case studies, anecdotes, है ना. कोटेशंस भी लिखते हैं, बट आई वुड से कि इतने छोटे ऐसे में कोटेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दो. कंक्लूजन में, अ वे टू कंक्लूड, जनरली मैं तब से क्या कर रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ का मैं वे फॉरवर्ड दे रहा हूँ. वे फॉरवर्ड दो, एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड अगर इंट्रोडक्शन में वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, तो उसका तुम जनरली मतलब समझाओगे, करंट रेलेवेंस क्या है इसमें ना, वही कर लो, मीनिंग समझा दो टॉपिक का, प्लस करंट रेलेवेंस क्या है उस टॉपिक का. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबलाइजेशन है तो इट्स लाइक द डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी इन सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग राइट नाउ. उसके अलावा ट्रेड वॉर है अगर, तो उसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज ट्रेड वॉर. उसके एग्जांपल दे दो कि इंडिया, वो सॉरी US चाइना का ट्रेड वॉर था. US ने 150% टैरिफ्स लगाए, चाइना ने वापस 125% टैरिफ्स लगाए. एंड करंट रेलेवेंस क्या है, इट इज़ हैविंग रेपरकशंस इन इकोनॉमी, पीपल टू पीपल मूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट. वो जो था मैं बता रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी स्प्लिट इनटू 2 ब्लॉक्स, US लेड, चाइना लेड, वो सब करंट रेलेवेंस है. तो इंट्रोड्यूस करते हुए ये बता दो. वे फॉरवर्ड में इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा लिंक कर दो बस चीज़ को. It kind of becomes a full circle कि as mentioned, as earlier mentioned, these issues are of current relevance and going ahead this is what can be done about it. And way forward मैंने बहुत सारे दे दिए आई थिंक इस पीपीटी में पूरी, है ना. तो ये हो गया एस्से राइटिंग का तुम्हारा. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एटलीस्ट ये फॉर्मेट मेंटेन करना. इट्स ना, इट गिव्स अ गुड स्ट्रक्चर टू योर थिंकिंग ऑल्सो. एंड वो ये कि अगर तुम ये फॉर्मेट में ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रैक्टिस कर लोगे ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करो, यही कर लो. इंट्रोडक्शन सोच लो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा या लिखूंगी. बॉडी में ऐसे लिख लो कि हाँ ये पेस्टल में ऐसे ओपन करके ये एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं, ये कुछ मैंने सुना था, ये शायद यहाँ पे फिट हो सकता है. कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में ऐसे ऐसे लिखूंगा, तो लिख लो. मतलब मैं तुम्हें ना एक फोटो भेजता हूँ अपने ना एक ब्रेन स्टॉर्म एस्से का. ढूंढना पड़ेगा यार, 1 मिनट देना बस.
यार सॉरी, मेरे को अभी ना मेरा ब्रेनस्टॉर्म ऐसे मिल रहा है, आई सेंड अ फोटो ऑन द ग्रुप, है ना? तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है। ऑफ कोर्स लाइक उतना डिटेल में तुम्हें डालने की ज़रूरत, उतना डिटेल में मत जाना, बट हाँ जस्ट फॉर्म अ फॉर्मेट कि हाँ ऐसे ऐसे लिख सकते हो। उसके अलावा आई थिंक दैट इज़ मोर लेस इट। और किसी को कुछ डाउट? आई सेंड अ फोटोग्राफ, समझ आ जाएगा तुम्हें। मोस्ट वेलकम हिमांशु। और कुछ? अदरवाइज वी कैन एंड द लेक्चर नाउ एंड कूल। चलो मिलते हैं। मैं ग्रुप पे एक बार वापस अपॉलॉजीज लिख दूँ, आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द एंटायर थिंग। मोस्ट वेलकम। Those who want to leave can leave. Most welcome, Leshma.